नमस्कार वाला भाइयों, वाला वाली बहनों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अरे सॉरी, हम नए चैप्टर में नहीं जाएंगे, ये कॉम्बो बैच है हमारा। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम थे, तो इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। और इक्विलिब्रियम चैप्टर में लास्ट में जहाँ तक मुझे याद है हम बुक रीड कर रहे थे। ओके, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, बुक रीडिंग को ही। चलो, बुक रीडिंग में हम बुक रीड करते करते पहुँचे थे शायद से पेज नंबर 201, जहाँ तक मुझे याद है 206 पहुँच गए थे। ओके, आपको मुझसे भी अच्छा याद है 206 पे पहुँचे थे। 210 तक पहुँच गए थे, तो जोरदार क्या है। चलो, उसके अंदर हमने देखा था कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन को ऊपर नीचे करने से जो इक्विलिब्रियम है वो ऊपर नीचे होता है। ये हमने देखा था, कंसंट्रेशन ऊपर नीचे करने से इक्विलिब्रियम ऊपर नीचे होता है, ये हमने देखा था। क्लियर? उसी चीज़ को अभी एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई कंसंट्रेशन ऊपर नीचे करने से इक्विलिब्रियम कैसे ऊपर नीचे होता है ना। चलो, तो एक एग्जाम्पल अच्छा दिया हुआ है अंदर, वो दिया है एग्जाम्पल है कि Fe3+ जो है वो येलो कलर का होता है। Fe3+ कैसा होता है? येलो कलर का होता है। उसके अंदर हम HCN ऐड करें तो आता है उसके अंदर हम क्या ऐड करें? HCN ऐड करें, है ना। तो बनाता है FeHCN2+, और जो डीप रेड कलर का होता है, कैसा होता है? समझिए। तो ये सारी बातें थी। तो મને ખબર પડી કે મારા ગયા પછી હોસ્ટેલવાળાએ કોઈ છોકરાએ જે લોકો બહાર હતા એમને શીખવ્યું, એમની ભરેલી ફી રિજેક્ટ થશે। તમે તમારી જાતને ખૂબ હોશિયાર સમજતા હશો કે અમે શીખવી દઈશું, તમને એવું હશે બધું તમારું હોય, આ બધું ફેરવતા વાર નહીં થાય, 2 સેકન્ડ લાગશે। મારા ગયા પછી આધી રાત્રે મોડી રાત્રે બી મેં જે ભણાવ્યું એ કોઈ હોસ્ટેલવાળાએ મફતિયાઓને શીખવ્યું, હું કહી દઉં આ લોકોનો દોન જ નહીં પીવાય, મફતનું બધું ખાવું। આ લોકો હાલશે નહીં, સીધું બર્ડન તમારા ઉપર આવશે અને એનો વોક તમારો જ પાછો। તમે શું કરશો? આ લોકોને કેવું મનવું કે કોઈ ના સર ભણાવી દેશે, આપણે તો શીખી લઈશું પ્રવીણ જોડેથી। પ્રવીણ ડાયાથી શીખવશે ને તો પ્રવીણ લાખ રૂપિયા એક્સ્ટ્રા ભરશે। સિમ્પલ વ્યવહાર હનો। પ્રકાશ કોમને ડાયાથી બધું શીખવા ગયા કે લો મેં સાગર સર જેવું જેવું ભણાવી દેતા હોય એ જ हुआ था क्लास में આવું કરી તો પ્રકાશ ભોગવશે। એનું કારણ મારું પેકેજ જેવું બધું પૂરું નહીં થાય ત્યાં સુધી હું કઈ એટલો ધાર્મિક માણસ તો હું નહીં કે આવતો રહે, અને હું પેકેજ ઉપર અડી ગયો કે આટલું જોઈશે, તો જેને ભણવું હશે એ લોકોએ પૂરું કરી આપવું પડશે। પહેલાં તો ભરવા જ નહીં ને, તમારે 80 ના 90 ભરવાના આવશે। એના કરતાં કહી દેવાનું ભાઈ અમને નહીં ખબર હું ભણાયું, અમને જ નહીં ખબર પડી તમને હું સમજાય શું ભણાયું ખબર નહીં, ભૂલી ગયા, હું મંત્ર મારી ગયા હતા હેડતી વખતે। બાકી તમે તમારી જાતને હોશિયાર સમજતા હો, અમે બધું ભણાવી દઈશું બહારથી, તું થઈ જશે, દોસ્તારોની મદદ કરી દઈશું, તમારી પત્તર ઠોકાઈ જાય, સીધી વસ્તુ। તમે તો વિચાર્યું નહીં ના લેવલે, મેં વિચાર્યું। હું તમારાથી એકદમ સીધી વાત કરી દઉં મારી ઈમાનદારીથી, મારે ઈમાનદાર રહેવું તમે રહેજો, ખબર? બાકી તો કેવું તમારે શીખવો તમારે તાકાત જ। જો હું તો બધાને શીખવું, તો જેવા બહાર નીકળો તરત શીખવા જ દોડજો, ભોગવજો। એક તો એ લોકો હું કમાલશે, પૈસા છે બસ, કે શીખવે ના લોકો પડ્યા અહીંયા અમે મફતનું ખોઈશું શીખીશું। ફિઝિક્સમાં બાયોમાં તો એ જ છીએ એવું, સમજે? તમારા મોડે આવશે। જો કોકને એવા ઉત્સાહ હોય ધર્માત્મા બની જઈએ તો બની જજો, જેવા લેવરાઓ પછી। चलो, खबर पप्पा लोगों। चलो, Fe3+ जो येलो कलर का होता है, और HCN- जो कलरलेस होता है,
उनको मिला के बनाते हैं FeSCN2+, जो डीप रेड होता है, ब्लड रेड कलर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाँ, ब्रैकेट करके लिख दो, डीप रेड मतलब ब्लड रेड कलर, समझ गए? हाँ, तो क्यों 5 बना हुआ है पर कंप्लीट असेज नहीं 500 बना हुआ है। डीप रेड कलर, उसको हम बोलेंगे ब्लड रेड कलर। कैसा बोलेंगे? समझ गए? अच्छा, ये इजी था भाई, ब्लड रेड कलर होता है इसका, है ना? अब ये समझाया है कि ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं, इसको बाहर से कैसे देखेगा, एग्जांपल से समझाया है कि रेडिश कलर appears on adding 2 drops of 0.02 molar potassium thiocyanate solution to 1 ml of 0.2 molar iron 3 nitrate solution due to the formation of FeSCN2. The intensity of the red color becomes constant on attaining equilibrium. The equilibrium can be shifted in either forward or reverse direction depending on our choice of adding a reactant or product. The equilibrium can be shifted in the opposite direction by adding reactant that remove Fe3 plus or SCN minus ion. For example, oxalic acid react with Fe3 plus ion to form stable complex ion FeC2O4 thrice, thus the decreasing the concentration of Fe3 plus in accordance with the Leach-Atelier principle. The concentration state of removes Fe3 plus is relieved by dissociation of FeSCN2 plus to replace the Fe3 plus ion. Because the concentration of FeSCN2 plus decrease, the intensity of red color decrease. The addition of HgCl2 also decrease red color because HgCl2 react with HCl minus ion to form stable complex ion HgSCN4 minus 2. Removal of free SCN shift in the equilibrium equation from right to left. The replenish SCN ions. Addition of potassium thiocyanate on other hand increase the color intensity of the solution as it shift to equilibrium to right. कुछ नहीं है, मस्त है, एकदम समझने वाली बात है। पहले हमें ये बोला गया कि हम आयन नाइट्रेट लें। क्या लें? आयन नाइट्रेट। मतलब आयन नाइट्रेट मतलब ये होता है FeNO3 थ्राइस। क्या होता है? FeNO3 थ्राइस, आयन 3 नाइट्रेट। ये येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो। ये जो आयन नाइट्रेट होता है वो कैसा होता है? येलो। समझ गए? मतलब हम आयन नाइट्रेट ले, येलो कलर का होता है। अब बुक वालों ने क्या किया, नेगेटिव आयन को लिखा ही नहीं है। समझ गए? मान लो मुझे ये NO3 नहीं लिखने हैं तो मैं क्या लिख सकता था यहाँ पे? +3। मैं ऐसे लिख सकता था Fe+3 पीजू आलो को बाहर है ने हमने हमारे लेक्चर रिपीट थे से नहीं था। हमने हमारे लेक्चर ना काप से 300 रुपया नहीं कर पाए। खबर एक बार से बाजू तो कोगने और वाई ब्रह्म Fe3+ क्या है? Fe3+। तो ये कैसा होगा? येलो कलर का। कैसा होगा? येलो। जो आयन नाइट्रेट होता है क्या होता है एक्चुअल में? आयन नाइट्रेट। और कैसा रहेगा? येलो। चलो, और दूसरा है अपने पास HCN-। क्या है? HCN पोटेशियम थायोसाइनेट। मतलब वो ऐसा होता है KSCN होता है। क्या होता है? KSCN। पोटेशियम थायोसाइनेट क्या होता है? KSCN। मेरे को पॉजिटिव नहीं लिखना है इस बार। क्या नहीं लिखना है? मतलब के निकालना है मेरे को। क्या निकालना है? के। तो निकाल सकते, खाली जानबूझ के ऐसा करके लिख रहे हैं। था क्या? आयन नाइट्रेट। तो ऐसे नंगा एफी नहीं घूमता कभी। अभी बिना माँ बाप के बेटा होता है क्या? तो बिना नेगेटिव के पॉजिटिव होता ही नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव साथ में होते हैं। समझ गए? तो होता है आयन नाइट्रेट। क्या होता है? अब हमने एक बात बताऊँ, हमने हम लाख से अच्छा माटू मगज नु पेलो खाऊ खा लिया तो तुमने टाइम की लवा है। रात है 12:43 है। हमारी तबीयत खराब थी। नेक्स्ट रात है,
ખરાબ તબિયત એટલે એટલી ખરાબ ને બહુ બેચેની, કંટાળો આવે, કશું મન ના લાગે, ઊંઘ ના આવે, ઊંઘ બસ આમ કોઈ કામ કશું નહીં, ઊંઘ ના આવે, ઊંઘ ના આવે. મેં બધાને મેસેજ કરી દીધા હતા કે હું કાલ નહીં આવું સવારે, કેમ કે મને ઊંઘ જ નથી આવતી. એટલે મને એમ કે હું સવારે ઉઠી નહીં શકું, પેલું લાગશે મને. સવારે ઉઠ્યો, હું વહેલો ઉઠ્યો, ભલે અહીંયા મોડો આવ્યો, 5 વાગે જેવું ઉઠી ગયો. પછી આવી ગઈ ખબર નહીં મને 1 વાગે, 1 થી 5 વચ્ચે હોઈ ગયો શાયદ, બરાબર. 5 વાગે ઉઠ્યો એટલે મને લાગ્યું કે તબિયત સારી, 1 કલાક ફર્યો 6 વાગ્યા સુધી, મને લાગ્યું કે સારી, એટલી બી ખરાબ નહીં. 6 વાગે બધાને પાછા ફોન કરી દીધી, મેસેજ કરી દીધા કે હું આવી ગયો. કેમ? સિસ્ટમ ના ખોરવાય તો બેવું ના પડે. હવે ફ્રેશ થઈ ગયો હું, એક ગુજરાતી મીડિયમને ભણાવ્યું, હસી મજાક કરી, બધાથી વાતો કરી, એટલે આમ થોડું ઉજાગરા જેવું હે, પણ કોઈ એટલું આમ ખરાબ તબિયત નહીં કે હું લેક્ચર ના લઈ આપું. આટલું અમે બધું કરીને આવી શકીએ તમારા માટે, તો તમારી બી ફરજ બને, તમને નહીં કહેતો. ચલો, એફી3 પ્લસ શું હે ये ખબર हाँ हाव खराब है, खूब दाड़ो लेक्चर नहीं लेवाय, तो હું બનતા हुई रजा नहीं ज पाड़तो, હું આવીને બેસી જાય कुर्सी पर, खबर हाव ऊपर जतुं रहे પછી હું रजा पाड़. अच्छा, एफी3 प्लस क्यों है ये? अब ये मेरे को नहीं लिखना है, पॉजिटिव नहीं लिखना है, मैं ये निकाल दूँ कि क्या बनेगा HCl. पोटेशियम थायोसाइनेट था, क्या था? पोटेशियम. ये कलरलेस होता है, कैसा होता है? मतलब ये अभी कलर वाले सब नेचर पे होता है, इसलिए ये क्या है? कलरलेस. मैं अब काला हूँ, गोरा हूँ तो है, बराबर जी है. तो ये येलो है तो है, ये कलरलेस है तो है, इसमें कोई समझना नहीं होता. अब ये दोनों मिलेंगे तो ये Fe क्या है? 3+ और HCl क्या है? माइनस. जब मैं आपको थोड़ा मैथ्स पूछूंगा, +3 है, -1 है, क्या आएगा? +2 आएगा. वही करना है, Fe और HCl को मिलाना है, मिल जाएगी है ना. Fe मिल गए, क्या मिला? HCl. Fe कैसा था? पॉजिटिव 3 का, ये -1 का, ओवरऑल क्या बचा? प्लस का 2. उसमें कहाँ अपना दिमाग यूज करना है? लोग तो ये भी रटेंगे. चलो, अब इन ऐसा तो है नहीं कि पहले ही इक्विलिब्रियम आ गया होगा. पहले क्या हुआ? इनिशियल में क्या हुआ होगा? शुरुआत में क्या होगा कि हमारे पास येलो कलर का आयन नाइट्रेट होगा, कलरलेस क्या होगा? पोटेशियम था, हमने उनको मिलाया तो थोड़ा बहुत रेड कलर आया होगा. एकदम से तो ऐसा है नहीं कि बहुत सारी प्रोडक्ट मिल गई होगी, थोड़ी प्रोडक्ट मिली होगी, थोड़ा बहुत रेड कलर आया. जैसे जैसे रिएक्शन चली वैसे वैसे येलो कलर की इंटेंसिटी कम और रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ती. रेड कलर की बढ़ रही है, येलो की इंटेंसिटी कम हो रही है. समझिए, एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने फिक्स कर दिया, एक एज पे जाके इन्होंने सोचा कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं. फिर उन्होंने क्या चाहा कि हम इक्विलिब्रियम में रहेंगे. उसके बाद येलो की इंटेंसिटी कम होगी ना, उसके बाद रेड की इंटेंसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी. इक्विलिब्रियम आने के बाद जो रेड कलर की इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी और येलो कलर की भी इंटेंसिटी कांस्टेंट. और जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया था तब तक येलो की इंटेंसिटी कम होती थी, रेड की इंटेंसिटी बढ़ रही थी, क्योंकि प्रोडक्ट बनना चालू था. इक्विलिब्रियम के बाद प्रोडक्ट बनना स्टॉप हो गई. इक्विलिब्रियम के बाद प्रोडक्ट बनना स्टॉप हो गई? नहीं, प्रोडक्ट बनना स्टॉप नहीं हुआ. रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट डिसोसिएट करके जितना ये एसोसिएट करके ये बनाता है उतना ये डिसोसिएट करके ये. एसोसिएट डिसोसिएट समझते हो? ये दोनों जोड़ेंगे तो उसको एसोसिएट कहेंगे. ये जब टूटेगा तो उसको डिसोसिएट. तो आफ्टर द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एसोसिएशन एंड रेट ऑफ डिसोसिएशन विल बी इक्वल. रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल. इंटेंसिटी ऑफ येलो एंड रेड कलर विल बी कांस्टेंट. मैंने बताया हुआ है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम.
Equilibrium always established in closed vessels. At the time of equilibrium, rate of forward reaction and backward reaction will be same. PVT constant. Color will be also constant. Color constant हुए इसका मतलब equilibrium आया है। तो मन में शांति है इसका मतलब मोहन आया है। समझे कि नहीं? हाँ, चलो। अंदर से अच्छा लग रहा है इसका मतलब वो आया है। समझे कि नहीं? तो मजा आ रही है ना, शांति है। मेरे खोटू है ओडा कोट। चल हो गया। चल ये हुआ। चल दूसरा ये समझे, ये जो होता है वो डीप रेड होता है। कैसा होता है? इसको हम ब्लड रेड कलर भी कहते हैं। ब्लड रेड कलर लोही के जो रंग होता है ना, वही रंग होता है इसको। अभी कंसंट्रेशन कम करें, क्या करें? कंसंट्रेशन कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। कंसंट्रेशन कम करने के तो एक तरीका ये है कि मैं इसको क्या करूं, मान लो ये बनी प्रोडक्ट, मैं एक टब लूँ। टब समझते हो? नहाने का टब होता है ना, हमने होगा हॉस्टल। टब से थोड़ा ये निकाल के बाहर है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम। जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन कम होगी क्या करेगी रिएक्शन? अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हुआ है तो ये रिएक्शन कतई सहन नहीं करेगी। अब देखना 2 दिन में सब वापिस खबर। अगर वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना चाहे तो, ना चाहे तो हम तो नहीं ट्राई करेंगे। समझे कि नहीं? तो बात ये है कि इक्विलिब्रियम अगर एस्टेब्लिश करना चाहेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ भागेगी, और वो तब तक फॉरवर्ड की तरफ भागती रहेगी जब तक फिर से इक्विलिब्रियम में ना आए। समझे कि नहीं? तो जरूरी तो नहीं कि मैं टब भर के ही कंसंट्रेशन को कम करूं। मेरे पास टब नहीं हो तो कंसंट्रेशन को कम करने के और भी तरीके हैं। कुछ तरीके हमें यहाँ पे दिखाए हैं कि कंसंट्रेशन को कैसे कम किया। ये तो हमने किसकी कंसंट्रेशन कम की? प्रोडक्ट। जरूरी तो नहीं है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ही कम करें, हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी तो कम कर सकते हैं। हम क्या करें, इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड डालें। क्या डाल दें? तब कितना अच्छा चल रहा है। FeOSCN मिलके FeSCN2+ बना रहे हैं, पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जा रहा है, लेकिन हम कितने बुरे आदमी हैं। क्या डाल रहे हैं अंदर? ऑक्सैलिक एसिड, है ना। चलो हाँ, तो हारू भगवान मन सदबुद्धि आपी ने। तुम्हारी आदत क्या भी है कि હું આખા ક્લાસને ના ભણાવું, એટલે ખાસ મોટા ભાગે સ્કૂલમાં જોબ ઓછી કરી એટલે મેં સમજ્યા આખા ક્લાસને નહીં ભણાવું। પછી મને યાદ આવ્યું કે ટ્યુશન જેવું અહીંયા બી એપ્લાય કરવાનું। આખા ક્લાસનો હું વાંક ऑक्सैलिक एसिड नहीं पकड़वाना भाई। तो ऑक्सैलिक एसिड डाला अंदर। अब हुआ क्या, ये ऑक्सैलिक एसिड के अंदर होता है C2O4-2। क्या होता है? जिसे हम ऑक्सैलेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखें C2O4-2 को क्या कहते हैं? ऑक्सैलेट। और इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये तो नहीं और ये होगा ये नहीं होगा, ऐसा तो नहीं। इक्विलिब्रियम के टाइम पे प्रोडक्ट भी होती है और रिएक्टेंट भी होता है। हमने क्या डाला अंदर? C2O4-2, मतलब ऑक्सैलिक एसिड में आयन है C2O4-2। और जैसे ही ऑक्सैलेट को देखा, ऑक्सैलेट का दीवाना आया, फिर खुद को रोक ही नहीं पाया, चल पड़ा पगला, भूल गया कि हमें इक्विलिब्रियम में रहना है। समझे कि नहीं? तो चला गया वो ऑक्सैलेट से जुड़ने। कौन? ऑक्सैलेट से जुड़ के उसने एक नया कॉम्प्लेक्स बना दिया, FeC2O4+1। -1 कब लिखें? C2O4 ट्वाइस तो फिर माइनस, C2O4 थ्राइस -3 नहीं बजाएगी। C2O4 क्या है? -2। C2O4 क्या है? -2। Fe क्या है? +3। थोड़ा मैथ्स कर भी लिया कर। +3 -2 +1, 2 C2O4 है। कितने दिए हैं आपके? 2 दिए C2O4, 3 दिए। तो 3 रखो। अब अपने कोई हिसाब कोई टेंशन ही नहीं है ना, 3 है
तीन का मिला के क्या हुआ, 6 हुआ। ये 3 का है, ये -3 हुआ, तो रटना कहाँ है, समझेगी। इतना दीवाना है C2O4 का Fe, है ना, 3 C2 को अपने पास रखेगा। एक स्वीटी नहीं, हमें कितनी स्वीटी चाहिए, देखा ये पागलपन। उस पगले को पता नहीं था ये करने से पूरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। हुआ ये कि जब Fe ने जाके C2O4 से साथ जुड़ के ये नया कॉम्प्लेक्स बनाया, तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होने लगा। कैसा होने लगा, ये सिर्फ एसोसिएशन में मानता है, वापस डिसोसिएशन में, समझ गए। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर Fe के साथ C2O4 जुड़ गया तो जुड़ गया, तो डिसोसिएशन नहीं होगा, क्योंकि एक स्टेबल आयन फॉर्मेशन माना गया है। क्या माना गया है, स्टेबल आयन फॉर्मेशन। समझ गए कि नहीं, अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है हमें। ये बन गया है स्टेबल आयन फॉर्मेशन। क्या बन गया है, मतलब मैंने जो चीजें सिखाई थी उसी चीजों को एनसीईआरटी ने मेरे से भी ज्यादा अच्छे एग्जांपल दे के सिखाई है। मतलब वही बात है, मैंने आपको यही सिखाया था कि कंसंट्रेशन कम करनी है, लेकिन मैं क्या बोलता था, इंक्रीज करनी है तो डालो, डिक्रीज करनी है तो निकालो। इसने बोला निकाले बिना डिक्रीज करे, समझ। इसने बोला और किसी चीज को डाल के बिना निकाले हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करें। कितना बढ़िया कंसेप्ट, नए बच्चे लाके हमारे बच्चे कम करें, कितना बढ़िया कंसेप्ट, समझे कि नहीं। नए स्टूडेंट बुलाए और पुराने कम करें, भाई चलो। तो बात ये है कि भाई हमने डाल दिया ये क्या, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ने अंदर से Fe को ले लिया, समझ गए। अब मैं बोलूं सब्जी है अपने पास, रोटियां नहीं है, कोई काम की है क्या चीज, समझे कि नहीं। अब HCN बहुत है, लेकिन Fe तो सब बिजी है आईफोन में, मतलब पूरा Fe तो बिजी है ऑक्सैलेट के साथ, तो अकेला HCN क्या करे। वो सर C2O4 -2 हो, उसके साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, +2 है, इससे तो वो मतलब अच्छा नहीं, अट्रैक्शन का होता है सब कुछ। वैसे तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लेके गया, लेकिन जैसे ही सेल के पास पहुंचा CO2 को ले लिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। मान लो बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दिखा, वरना दोनों को छोड़ देता। ये तो चलो भाई, अभी मैं इनको लेके आता हूँ, हीरा सर को, केतन सर को, अभी आ गए इधर, और वो हर्ष सर, अच्छे पैसेंजर मिल गए कोई। इतना ही कहना है भाई, मामा बाप जी होटल दी जीप बस मड़े यही दे जो, समझे कि नहीं। तो जरूरी थोड़ी है कि भाई ठेका थोड़ी है ऐसा कोई, ये तो क्या है, अभी कुछ अच्छा है नहीं तो आए, मान लो सब चालू हुआ और लगा कि नहीं कोई दूसरी स्कूल के भी अच्छे पैसेंजर इस तरफ आ रहे हैं और वो डीसा से बिलोंग करते हैं, तो अपनी तो जो सेवा भावी रखवाएंगे अट्रैक्ट कर देंगी, समझे कि नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे गधे खड़े हैं, गधी जाके किसी को भी प्रपोज करे, उसका भी तो एक पसंद होता है, समझे कि नहीं। तो बिल्कुल यही है, C2O4 को भी Fe पसंद है और C2O4 कॉम्प्लेक्स बनाने में मानता है, ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो बात यह है कि इनको कॉम्प्लेक्स बनाना, स्टेबल आयन फॉर्मेशन करना। अगर C2O4 इधर जाता तो होता ये कि C2O4 को अंदर रहने नहीं मिलेगा, उसको रहने मिलेगा ब्रैकेट के बाहर, और वो स्टेबल आयन फॉर्मेशन नहीं है। जब चैप्टर 9 स्टार्ट होगा पता चल जाए, जब मतलब आज ही होगा, 2 लेक्चर में मेरे 2 ही होंगे। हाँ, थोड़ा आवाज धीमे रहेगा, टॉपिक कम चलेगा, बाकी काम होगा। क्लियर, समझ गए, क्लियर, ओके। तो ये स्टेबल आयन फॉर्मेशन हुआ, अब डिसोशिएट नहीं करेगा। तो क्या हुआ कि यहाँ से बहुत सारे Fe की कंसंट्रेशन में
कमी आई, मतलब Fe की कंसंट्रेशन डिक्रीज। अब Fe की कंसंट्रेशन डिक्रीज, रिएक्शन साला क्या करेगा? बैकवर्ड भागेगा। क्या करेगा? अब रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा तो लोचा होगा। बैकवर्ड रिएक्शन जैसे ही आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि अकेला Fe दे के HCN अपने पास रखे, नहीं समझे? फिर तो वो Fe भी देगा और HCN। चलो जितने Fe पहले थे उतने Fe करने पे HCN क्या हो जाएंगे? ज्यादा। इसीलिए लिखा है कि HCN का रेप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन। ऐसा कुछ लिखा है, मतलब वही रेप्लिकेशन का मतलब समझते हो? DNA रेप्लिकेशन सुना है? बिल्कुल वैसा है, समझे? फिर से रखा तो होगा ये कि इस तरफ HCN ज्यादा हो जाएंगे इक्विलिब्रियम लाते लाते, समझे कि नहीं? फिर से रिएक्शन कोई ना चाहे, ये हाइड्रोजन पड़े नहीं है इसके, इसका वो के पड़ा नहीं है, वो तो पड़ा जो है अंदर को है ना, जता रहा हो। ये तो खाली लगता नहीं बुक पड़ा, वेड़ पाड़ दे एनपी को, समझे कि नहीं? घोड़ा थोड़ी है HCN के ना हवा में तो झूले लालना टंकोरा हुआ गाड़ी सु जाएगी वही। પછી તો વેળ પાડ દે હું કંટાળે ગયો સમજો। પહેલા એક બે વખત એવું લાગે કે ફોરવર્ડ બેકવર્ડ કરીએ, ભાઈ ખબર પડે હાથો હારું Fe ઓછા થયા, मतलब Fe कम हुए, Fe को बढ़ाने आए, इसका हो गया रेप्लिकेशन, ये बढ़ गए पासे होम गए तो बड़ी Fe का डाट बढ़ गया, क्योंकि Fe भेगा खाएगा तो होम जाएगा ना, मतलब फिर से Fe ओछा हो जाएगा तो पासको आखो दाड़ो कोई नवरी ना सके ओम 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 फरे रखेंगे। પછી એ भी કંટાળીને કોક નિર્ણય પર તો આएंगे जैसे आज अपने आए એવી રીતે, तो ये भी बसी कि ऐसे गवा हम हमारी રીતે ગોઠવાઈ जाते हैं। खबर सुको के निकल के माइनस, अरे निकाला એટલે खाली समीकरण में से निकाला है, अंदर बीकर में तो होगा, मतलब इक्वेशन में से निकाला है कि कोई अपूर्चा नहीं निकल रहा। अब मुझे तुम ये समझाओ भाई कि हम हमारी बॉडी में क्लोराइड होते हैं, ये लोग झंडा लेके एकले क्लोराइड भरते हैं। क्लोराइड का मतलब है Cl माइनस, अकेले क्लोराइड नहीं होते भाई, हमें बता पहला हुआ है ना, ये होते हैं सोडियम तो पोटेशियम, तो खाली एम नाम कहते हैं कि क्लोराइड होते हैं। એવું એકલું થોડી ભરતું હોય યાર, નેગેટિવ ફર વાત કરે તે ખબર એ તો એના ભેગો એનો હોય જ પેલો ઓવા સાથી। तो हमने ऑक्जेलिक एसिड डाला, चलो ऑक्जेलिक एसिड में से ऐसा है कि भाई ऑक्जेलिक एसिड को चक्कू लेके कापाना, हाइड्रोजन अलग C2H4 ये भी तो डाला होगा, और ये तो डाला होगा બધું ગયા होगा अंदर H2 पर उसमें से काम खाली कौन करा? એવું સમજાયા है, बाकी એવું नहीं कि अंदर થી ઓમ કીધું હશે H2 તારી માની સોગન તું બહાર નીકળ તો જશે, એવું ના હોય યાર, એ તો બધું ભેગું જ ગયું હોય H2 C2H4 મોડા જેવી વાત। પછી આ તો HCN કંટાળા ન કહો કોઈ થાય નહીં, પછી ઓલો હાઇડ્રોજન ને સીટી મારે કે હવે આવો ગોઠવીએ ઓમ નો ઓમ થા क्या समझ। और जरूरी थोड़ी है कि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करने में ऐसा हो। दूसरा एग्जांपल समझा कि हम इसको भी डिक्रीज, तारा बसी मारो मारा बसी तारो बधानो से मारो ना बजे, हम इसके अंदर डाल दे HgCl, क्या डाल दे HgCl2 एक Hg2Cl2 है, चेक करो बेटा बहुत फर्क पड़ी जाता है इसमें। ये मर्क्यूरिक है और वो होता है मर्क्यूरस, तो वो कौन HgCl2 क्या है? वो HgCl2 क्या है कि जो HgCl2 में वो हम जो अमुक तो कैसा कि एकला Hg तो ना डाला है, वो कापा ना पड़े इसका। HgCl2 में दो वस्तु है, एक है Hg+2 અને 2Cl-। अब हमने શું करा खबर कि आखी सिस्टम इक्विलिब्रियम में थी,
હવે પેલું ભૂલી જાઓ, ઓક્ઝેલિક એસિડ जोड़ने के डाला ही नहीं था, बरोबर। पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में थी। खाओ पड़ता है भाई हिंदी बोली बाजू कसू समझन पड़ा ना बका सवाई आवड़ता है हिंदी हो मुझे। अच्छा तो इक्विलिब्रियम के अंदर था पूरा सिस्टम। फिर हमने क्या किया कि उसके अंदर एकदम से ये डाला क्या HgCl2 और जेवा HgCl2 आपसे ना एवा आयरा गोड़ा हो जाएगा। किसको देख के वही Hg को देख के। अब ये ना देखे धोखा पड़ा एक ना देखे गोड़ा था। अब मुंह था भाभी बनने भेगा ये तू कौन देखिन गोड़ा था तो मुझे तो साथ कम ना देखें गोड़ा ना था है भाई तो चेक कराओ जो सारा डॉक्टर ने बताओ तो जे जोइंग गोड़ू थवा ये जोइंग न थवा है। चलो सानिया जी खुश थे Hg2+ में Hg2+ मजा आई उड़ावा नहीं। चलो Hg2+ तो इसको देख के ये पगला जाएगा कौन अब आना माइनस आना माइनस हूँ पगला है गधेड़ा जो तो पूछता है। तो Hg2+ को देख के कौन खुश हो जाएगा HCl के इक्विलिब्रियम व्यू हार दी बोलती हूँ। चलो HCl इक्विलिब्रियम બધું છોડી આના ભેગો ગોઠવાઈએ છે કોના ભેગો સમજે કે નહીં ભાઈ लोग અને ये Hg ભેગા ગોઠવાને का चालू करेगा कौन HCl। હવે એક Hg કેટલા HCl ભેગો ફરે 4 આ બધા પરમવીરના દોસ્તારો એકમોનો સંતોષ જ નહીં। ચલો HgHCl4 कितना बनेगा -2। अब आगे नहीं भी अच्छा देखो Fe ये ऑक्सिलेट में ना अच्छा सिखाओ आयरो Hg आ बैच को एक ना पापा पड़ा तो Cl का गया तो काट सकता है बोला वो फेंकता है अरे वो Cl अंदर नवरी बाजार बन गया हाँ अंदर नवरी बाजार ही वो नेगेटिव बनेगा वो करा वो से मेरा मतलब खबर ना होता हुआ Cl तो अंदर फरता वाटा मारे कभी यूं करेगा हाँ बधानो मेल ना पाड़ो जिनो पढ़्यो एनो आनंद अमो वोडा तो फरसे धरो भाई आपने जन्म नाखसे कोण बधा को ढोई तो ऐसा होता है खाओ पड़ा तो ये Cl तो अंदर रवड़ेगा। अब होगा ये कि इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस्टर्ब इनके पथारी फेरवाई उसके आने से इसके एकदम इसकी सांद्रता घट गई कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी कम। जैसे कंसंट्रेशन कम हुई रिएक्शन कई बाजू दौड़ेगी समझे कि नहीं रिएक्शन बैकवर्ड आएगा वापस। ना सर दिया सकते हैं मेरे पास
क्या हुआ समझो, ये है मतलब क्या, HCl की कंसंट्रेशन में कमी है तो रिएक्शन तो वही बैकवर्ड जाएगी। अब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि अकेला HCl देगी, वो साथ में Fe भी देगी। अब रेप्लिका किसका बनेगा, तो HCl तो हो जाएगा इक्वल, क्योंकि HCl क्या है, थोड़ा HCl इधर बीजी है, यहाँ से डिसोसिएशन होकर नया HCl बना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये जादू ही डिसोसिएशन करे सिर्फ HCl बने, Fe ना बन पाए, Fe भी बनेगा। तो इस बार Fe की क्या बनेगी, रेप्लिका। Fe की रेप्लिका बनेगी, फिर से लोचा, कंसंट्रेशन Fe की बढ़ जाएगी, तो ऊपर नीचे थोड़ी देर चलेगी, फिर Fe सोचेगा ये साला ऐसे तो मर जाएंगे भाग भाग के, तो वो Cl को सीटी बजाएगा, वो भी नवरी मैं भी नवरी, कुछ करे मिलके बैठ के, तो FeCl के साथ सेटअप हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम बिल्कुल रापचिक से चलेगा। वही सब कुछ समझाया गया है। यहाँ पे मेरे को अच्छा क्या लगा सबसे, कि साला कुछ ऐड करके कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया है, वो मुझे बहुत पसंद आया। इनको फीस के लिए बात निकल आई, भर देना आप लोग, 1-2 दिन में जाओ, इधर जाओ।